So in this special series for UP, from UP, let's talk about Pratapgarh. Pratapgarh is a very important constituency as far as the Congress is concerned. Just like Amethi, just like Rai Bareli, just like Sultanpur. In the 80s, when there was Congress dominance in Uttar Pradesh politics, these were the key centers that represented Congress dominance. Of course, over the years, and particularly the 90s, politics changed. There was emergence of the Samajwadi Party, then later the emergence of the Bahujan Samaj Party. Then, of course, alongside was the emergence of a very powerful Bharatiya Janata Party, the Bharatiya Janata Party, which got over 70 seats in 2014 Lok Sabha elections, 325 seats in the 2017 Assembly elections. What is very symbolic as far as Congress party is concerned, because everyone asked this question, that how many seats can Congress win in this election? This is nearly the closing time, the second last phase of the Lok Sabha elections in Uttar Pradesh. Please don't forget that in 2009 elections, Congress did extremely well in Lok Sabha and actually got 20 seats, more than 20 seats in 2009. But since then, Congress has not been able to hold the regions it gained. And Pratapgarh is somewhere very symbolic if there is a turnaround on the ground for Congress in these elections. Why am I saying so? Is at least will the Congress be able to hold back in the areas that it had tremendous strength once upon a time. So Ratna Singh is an old Congress leader, an old Congress candidate who's contesting it this time. So Pratapgarh, victory or loss, will be a lot of representation for the Congress party in a lot of ways. And that will be very, very, very keenly watched in this election, because Congress eventually bought out Priyanka Gandhi in this election. She's a big face as far as the Congress is concerned, and also made Priyanka Gandhi in charge of Eastern Uttar Pradesh. So Priyanka Gandhi officially made an entry into politics in this 2019 Lok Sabha election. What will be very important to see is that Priyanka Gandhi impact, can it hold back old Congress bastions like Pratapgarh, where I am? चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, किसका कमजोर है? इसमें तो भाजपा का पलड़ा भारी है। भाजपा का? हाँ। यहाँ पे प्रतापगढ़ में? हाँ हाँ। है? हाँ। रत्ना सिंह का नहीं? नहीं, अभी नहीं उसका नंबर। लड़ाई दोनों का है, लड़ाई दोनों का है, भाजपा का और अपना दोनों का। और ये अपना दल? अपना दल का नहीं। त्रिकोणीय संघर्ष है, राजा भैया भी लड़ रहे हैं। हाँ हाँ, इसीलिए हम पूछ रहे हैं, राजा भैया। हाँ, त्रिकोणीय संघर्ष आया है। अच्छा, जो निकल जाए 10-12 वोट से। हाँ, ज्यादा जीत हार ना हो, थोड़े वोट से हार जीत। रत्ना सिंह तो पुरानी कैंडिडेट हैं, कांग्रेस का गढ़ रहा है, अब नहीं कांग्रेस का गढ़। अरे अब भी गढ़ है, लेकिन लड़ाई बहुत तगड़ी है यहाँ। क्या हो रहा है चुनाव में? चुनाव में तो बढ़िया है सर। अरे वोट किसको पड़ रहा है ज्यादा? वोट सर अब क्या बताएं, हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है सर। ये देखिए एकदम ताजा ताजा ये गन्ने का जूस निकाल रहे। नेताओं का जूस निकल जाता है चुनाव में, मालूम आपको? हाँ हाँ हाँ। है? तो नेता लोग कौन सा जूस पी रहे हैं? बीजेपी वाला लोग ज्यादा जूस पी रहे हैं, कांग्रेस वाला पी रहे हैं, या राजा भैया वाला? राजा भैया ज़्यादा पी रहे हैं। राजा भैया ज्यादा पी रहे हैं? हाँ। क्या हो रहा है कुछ तो बताइए। तो हाँ, चुनाव। हाँ, मोदी है, मोदी। मोदी है, मोदी। हाँ, हैं? और क्या? कांग्रेस नहीं, रत्ना सिंह जी नहीं है, रत्ना सिंह है। हाँ, लेकिन मोदी है तो मोदी के नाम पे। क्यों भैया? हाँ सब जी। मोदी के नाम पे? कैंडिडेट बेचारे का क्या? नहीं, कैंडिडेट के बारे में पूछेंगे तो भाई दूसरा बता देंगे, लेकिन देश के बारे में पूछेंगे तो बोलेंगे कि मोदी जी। भाजपा का माहौल है। भाजपा का? भाजपा भारी है यहाँ, सब प्रत्याशी। भाजपा में प्रत्याशी का नाम बताइए। संगम लाल गुप्ता। और वोट संगम लाल गुप्ता का है या मोदी जी का है? नहीं, वोट तो मोदी के नाम पे। संगम लाल का कोई यहाँ खास रोल नहीं है, लेकिन वोट तो मोदी के नाम। संगम लाल का खास कोई रोल नहीं है, वोट तो मोदी के नाम का है। This has almost become a common feature as I travelled across Uttar Pradesh. This is the second last phase that people clearly tell you, clearly say this on camera, on record, that the vote is in Modi's name, not the candidate. Now this has become a very, very advantageous, unique feature for the BJP in 2019 elections in Uttar Pradesh.
अरे बहन जी बताओ यहाँ क्या हो रहा है इलेक्शन में, किसको वोट पड़ रहा है ज्यादा? सर यहाँ पर तो आई थिंक सब लोग बीजेपी को चाहते हैं। सब लोग बीजेपी को चाहते हैं। जी सर। लेडीज खास तौर पे, विमेन, महिलाएं खास तौर पे। महिलाएं बिल्कुल चाहती हैं। महिलाओं के लिए सबसे मेन बात उन्होंने क्या है कि चूल्हा छोड़ करके गैस आ गई है घर में, चूल्हा छोड़ शौचालय बन गए हैं। शौचालय बन ये गए सारी हैं। चीजें लेडीजों के लिए आई थिंक बहुत अच्छा किया मोदी जी ने। बहुत अच्छा, ठीक है। महिलाओं का ये, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट बिकॉज दिस इज व्हाट बीजेपी हैज बीन pushing also in its election campaign, and a lot of feedback has come through that women primarily are attracted towards the fact that they have gas connection. They don't need to use the conventional methods of cooking. Now that's very, very important if it clicks for the BJP and of course for Narendra Modi like this. ये आप क्यों पहने हो? अजी ये तो हम तो गर्मी के लिए पहने, देखो। हाँ, तो ये भी जो है सुरक्षा के लिए है अपने। किस चीज की सुरक्षा के लिए? हाथ होठ है, हाथ होठ के सुरक्षा के लिए, गर्मी की सुरक्षा के लिए। लेकिन ये तो भगवा रंग का है, इससे रंग से मतलब क्या है? तो अरे भाई, आप बीजेपी समर्थक हो क्या? अब ऐसा है कि हम समर्थक तो इस समय बीजेपी के हैं। इस समय हाँ। तभी पहन लिए ये वाला है? अच्छा, ठीक। देखिए ये बीजेपी के समर्थक है, इसलिए इन्होंने भगवा रंग वाला ये पहन लिया गमछा। हम भैया किसी के समर्थक नहीं, इसलिए हमारा सफेद वाला है। हाँ, इधर आइए। हाँ, बताइए क्या आई, बताइए क्या हुआ? हाँ, मोदी का विकास और राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी है। विकास और राष्ट्रवाद का दोनों मुद्दा हावी है। ठीक, मोदी का विकास और राष्ट्रवाद का। देखिए उधर हम उनसे पूछते हैं, यहाँ क्या हो रहा है चुनाव में सर? यहाँ भैया मोदी जी हैं। मोदी जी? जी। और राजा भैया ने भी अपना उम्मीदवार दिया है, रत्ना सिंह पुरानी उम्मीदवार है। नहीं, तीसरे या चौथे नंबर पे। तीसरे? अरे बाप रे, तीसरे चौथे नंबर पे क्या हो रहा है चुनाव? मोदी से मोदी। मोदी। आप? राष्ट्र मोदी, राष्ट्र का नाम मोदी को, राष्ट्र का नाम मोदी को, राष्ट्र को देखना है तो मोदी को देखना है। ठीक, राष्ट्र को देखना है तो मोदी को देखना है। दिस इज ऑफ कोर्स as we move into small town India, rural India and parts of course of Uttar Pradesh, this is what BJP has pitched is nationalism as. राष्ट्र के लिए है तो BJP है. That means that if it's for the nation, it's BJP. That is the pitch BJP has used in this election across India and of course across Uttar Pradesh as well. 9 बार लगातार जिताकर इस देश का ही नहीं दुनिया का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर आपने पहुंचाया है तो अब इस वक्त जहाँ पर मौजूद है ये रामपुर खास है प्रतापगढ़ में, और बहुत प्रोमिनेंट कंस्टिट्यूएंसी है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर जो उत्तर प्रदेश में प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद। प्रमोद जी, बहुत दिनों से मेरा मन हो रहा था आपसे बात करने का। हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था लखनऊ में प्रियंका गांधी की राजनीति में ऑफिशियल एंट्री को लेकर। अब वो समय जा चुका है, सेकेंड लास्ट फेज है। क्या आपके हिसाब से असर है, इम्पैक्ट है प्रियंका गांधी का? देखिए, प्रियंका गांधी जी में लोग इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं। ये आपने पहले भी कहा था मुझसे। आज कहा है मैंने इस बात को दोबारा जी। प्रियंका जी मंच पे बैठी थी और मैंने ये कहा 1980 का मुझे पहला चुनाव याद आ रहा है। बड़ा मैदान था, पहली बार चुनाव लड़ रहा था, तब इंदिरा जी बैठी थी। आज लग रहा है जैसे वही अध्याय दोहराया जा रहा हो, और सभी लोगों ने तालियां बजाकर मेरी इस बात की ताकीद की कि ये प्रियंका गांधी नहीं बल्कि दूसरी इंदिरा गांधी। बीजेपी ने एक पिच दिया है इस बार, वो उनका फॉर्मूला है राष्ट्रवाद का कि राष्ट्र पहले। बहुत सारे लोगों से हम बात करते हैं तो ये कहते हैं हमें कैंडिडेट नहीं मालूम, कैंडिडेट का बीजेपी का नाम नहीं मालूम। हम बीजेपी को अगर वोट देंगे तो इसलिए देंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि राष्ट्र पहले। ये जो राष्ट्रवाद की पिच है, ये कितनी सही कितनी गलत है? मैं इसे एक बहुत बेईमानी भरी पिच मानता हूँ। जैसे पिच बिगाड़ दी जाती है ना खेलने के पहले, वैसे भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की मोदी सरकार में ये हिम्मत नहीं है कि वो बताए कि हमने जो वायदे किए थे उसमें ये पूरे किए। वो ये भी नहीं कर पा रही थी, अब ज्ञान जी आज नहीं कर पा रही है कि वो, आप देख रहे होंगे अयोध्या का नाम ही नहीं ले रहे, जबकि पिछली बार मुद्दा
अयोध्या था। सब उनके मैनिफेस्टो में था, सही बात है। कहाँ गया वो 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख? तो उनसे अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए राष्ट्रवाद। अरे कांग्रेस से बड़ा राष्ट्रवादी कौन है? एक सर्जिकल स्ट्राइक आपने की, वीरों को सलाम, सेना महान। पर 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ। 1 लाख पहली बार दुनिया के इतिहास में प्रिजनर्स ऑफ वार लाए गए। पहली बार छोगिल नहर पार करके लाहौर में दस्तखत दी गई। तो राष्ट्रवाद तो हमारा मुद्दा है। वो एक अपने आप को कवर अप ढूंढ रहे हैं अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आप जैसे नेताओं को मैं वाकई इसलिए सम्मान करता हूं कि बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के 35-40 साल से आपने कांग्रेस को अपने कंधों पर उत्तर प्रदेश में जिंदा रखा है। कभी कभी आपको लगता है कि इस पार्टी को वर्कर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशन इसके बदलने की ज़रूरत है। कड़वा सवाल है, लेकिन सच में मतलब मैं नए नए चेहरे देखता हूँ। लखनऊ से कोई प्रमोद कृष्णन नाम के आदमी को उतार दिया जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल गलत है। आपको लगता है कि ये पार्टी कब ऑर्गेनाइज्ड होगी उत्तर प्रदेश जीतने के लिए? 2009 में आप 21 सीट लेके आ गए थे और फिर ऐसी हालत में आ जाती कांग्रेस। देखिए, मैं मानता हूँ कि कुछ न कुछ तो हमें नयापन लाना ही होगा, और वो नयापन ये होना चाहिए कि कार्यकर्ता को ज़्यादा सम्मान और कार्यकर्ता को ज़्यादा जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। जैसे आपसे कार्यकर्ता जुड़ता है, बाकी कांग्रेस की लीडरशिप में जाता हूँ मैं, 1.25 महीने से यूपी घूम रहा हूँ। हकीकत ये है, न कांग्रेस का वर्कर नज़र आता है, न कांग्रेस का झंडा नज़र आता है। आपने यहाँ कार्यक्रम किया, लोग आते हैं, कांग्रेस के लीडरशिप से कनेक्ट नहीं हो पाता है लोगों का। ये बहुत सीरियस मसला हो गया। देखिए, संगठन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, नेतृत्व पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रियंका गांधी जी के आने के बाद, क्योंकि बहुत अरसे से मैं उसके साथ राजनीति में तो अब आई हूँ, अमेठी रायबरेली जब देखती थी वो, तब से मेरा संपर्क है। वो जेन्युइन है, मेहनती है एंड रिजल्ट ओरिएंटेड है। In Pratapgarh, it is absolutely clear what works here is the Pramod Tiwari factor. Pramod Tiwari is a Congress leader who's been here for years and years and years. In fact, in 2009, when Ratna Singh won this seat, again the factor was Pramod Tiwari factor. But what is very important to see is BJP in a direct fight with Congress here. Can the Congress hold on? I'd made this point earlier that constituencies like Pratapgarh once upon a time were Congress bastions. So it will also be very reflective of Priyanka Gandhi's entry if, and finally with the Pramod Tiwari factor, Ratna Singh helps win this seat back for the Congress. Very important to notice this into 2019 elections here in Pratapgarh. This is Abhigyan Prakash for my special series for UP from UP.